Hi guys, welcome to Law Organic. This is my first video, and with this video I wish to begin a journey where we can together learn the basics and the fundamentals of the most important laws, and along with that its most difficult and problematic sections. So today we will begin with the Transfer of Property Act and we will discover more and we will learn more as we go. So let's start. सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिक्स में जाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज टू की पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि ये एक्ट किस दिन एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था. इट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882. एंड सेकेंडली, क्या ये एक सब्सटैंटिव लॉ है या फिर ये एक प्रोसीजरल लॉ है? What is the meaning of substantive and procedural laws? Substantive law means which tells about the rights and obligations of a party. Rights आपके अधिकार और obligations मतलब आपकी जिम्मेदारियाँ. तो एक लॉ जो क्लियर कट बताता है कि ये एक्ट करने पर आपको कितनी पनिशमेंट होगी या कितनी लाइबिलिटी होगी, दैट इज़ अ सब्सटैंटिव लॉ. एग्जाम्पल्स सब्सटैंटिव लॉ के और कौन से हैं? इंडियन पीनल कोड, द कंपनीज एक्ट 2013 एट्सेट्रा. एंड प्रोसीजर लॉ बताता है कि जो आपकी राइट्स और जो आपकी ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं आप उनको कैसे एनफोर्स करवा सकते हो. प्रोसीजर क्या है? आपके अधिकारों को एनफोर्स कराने का या किसी और की ऑब्लिगेशन या उसकी जिम्मेदारियों को पूरी करवाने के लिए. तो दैट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ. सो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, but it is mainly substantial. It mainly tells about the rights and obligations of a parties and it is not just procedural. So when we now look at the heading of the act, we see very two important keywords. First is transfer and second is property. So we will begin with understanding what transfer means. तो ट्रांसफ़र का मतलब मोस्टली पीपल कंसिडर इज़ ओनली सेल, कि एक पर्सन ने या किसी कंपनी ने दूसरे पर्सन को कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची तो दैट इज़ ट्रांसफ़र. बट ट्रांसफ़र इज़ लॉट मोर देन दैट. सो जब भी कोई लिविंग पर्सन या फिर कोई कंपनी या कोई एसोसिएशन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी देता है दैट इज़ ट्रांसफ़र. बट हाउ ही और शी गिव्स दैट प्रॉपर्टी इज़ येट टू बी डिस्कस्ड. So there are two modes of transfer. It is classified in two modes of transfer. First is by the act of parties and the second is by the operation of law. By the act of parties means where parties intentionally and voluntarily act into an agreement in a contract for the transfer of property. And इसके examples है sale, which is the most common. Exchange means where in consideration of a property you give either money or some other property. Gift, lease, license, etc. By the operation of law means when the parties have no control over that transaction. जब parties अपनी मर्जी या मर्जी के बिना लॉ के कहने पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करती हैं तो उसे कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. इसका एग्जाम्पल है सक्सेशन, इंसॉल्वेंसी एंड फोरफीचर एट्सेट्रा. सो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले मैटर्स में डील नहीं करता है. इसका स्कोप कितना है? ओनली उन ट्रांजैक्शंस पर विच आर अ रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्टी. So before moving to the next keyword that is property, it is important to note कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल्दो उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पर है विच आर एन एक्ट ऑफ पार्टीज एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस जजेस हैव ऑल्सो अप्लाइड इट्स प्रोविजंस टू द मूवेबल प्रॉपर्टी. सो नाउ लेट अस सी व्हाट डज प्रॉपर्टी मीन्स. So let us move to the second keyword that is property. Although properties are of several kinds, movable, immovable property, जैसा हमने यहाँ पे mention किया है, tangible, intangible property, public property, private property, etc. But today we will limit it only to the immovable and movable properties. In fact, if you look at the scope of the Transfer of Property Act,
it is also only limited to the immovable properties, not the movable properties. So now, what are immovable properties? There is a lot of confusion around it. So it is to be seen कि it is nowhere defined in the act. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है. ऑल्दो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या आता है और कौन से एक्ट्स हैं जिनसे हमने ये डेफिनेशन को बोरो किया है. टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.